Wasn't any need to write. आया होमवर्क आया बोल any doubt in the homework sir which one I don't know एक हाथ कोई शायर wrong I don't know sir discuss करने PDF मत खोल illustration 90 check the answers डिस्काउंट कब से इतना बड़ा हो गया मेरा भी टिकट था बिल्कुल ये राइट है ये को भी ये आता है फोन Okay, check the answers. Illustration 9, first one. Bank to sales to output 56, 53 and 3. बराबर? Second one, Sujit to sales to output. Cash bank, सब पे बैंक कुछ नहीं दिया तो you can write bank. GST के लिए write bank कोई. Sujit to sales to output 28,000, 25,000, 1,500, 1,500. Is that clear? तीसरा वाला it is bank discount allowed to Sujit 25,200, 2,800 and 28,000. That's okay. Cash लिखा तो भी wrong नहीं है. GST के लिए better write bank. मिला आपको? Second one is Sujit to sales to output. Amounts are 28,000, 25,000, 1,500, 1,500. आया? Third आया bank discount to Sujit. Fourth bank next one is bank appeal to sales to output IGST. बराबर है? Bank 12,000, Kapil 21,600 to sales 30,000 to output IGST 3,600. Then it is rebate लिखा है ना उसके जगह you can write sales returns. Is it clear? The sales return output IGST to Kapil 5,600 and 5,600. मिला? You can write sales return instead of rebate. Understood? Hamza Ginoi. Then Manpreet to sales to output IGST 89,600, 80,000 and 9,600. बराबर है? Manpreet to sales to output IGST. Then sales return output IGST to Manpreet 16,1920 and 17,920. बराबर? Then it is cash या bank to commission to output 16,800, 15,900, 900. भूल ही गयो? तो तो बहुत बड़ा है नंबर कितना है? ना पता नंबर कितना है? 0.5 and 1.5. चलो आया ये वाला? Any doubt in this problem? Clear? आया? 9th sum, any doubts? Okay, 10th problem. First one,
Mukesh to sales, इसमें mistake है. Mukesh to sales to output. ए भाई, बुक का चश्मा दे रहा है. तू क्या देखेगा? Mukesh to sales to output. अजीब है. दोस्ती यारी 44,800, 40,000, 2,400. मिला? Mukesh to sales to output. Now, ये वाला गलत है solution में. Sold goods to Mukesh at least price 1 lakh less 20% trade discount and 5% cash discount. This is actually on credit. पार्टी का नाम दिया और कैश बैंक के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है. तो दिस इज अ क्रेडिट कैश डिस्काउंट इज सीडी देने से फर्क नहीं पड़ता है. बराबर. फॉर कैश फॉर चेक, बाय कैश बाय चेक, एनईएफटी आरटीजीएस होना चाहिए. So the second one was on credit. Entry will be Mukesh to sales to output. वापस वही आएगा. Mukesh to sales to output. Is it clear? अमाउंट was second 888 डिस्काउंट ए 89 It's on credit. पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं है. ये वाला गलत है. 4800 यहाँ पे आएगा 80. कितना है नेट अमाउंट? 89,600, 80,000, 4,800. Got it? And the last one, it's bank cash Mukesh to sales to output. Bank it is 60,480, cash 20,160, Mukesh 53,760, to sales 1,20,000, to output 7,200. Is this clear? हमजा बोलो. Any doubts? क्या है? घर जा रहा है बेटर है ना बेटर एक आराम. और यार 3 दिन में लिखने All right. आया समय आया. 9th और 10th दोनों आया. तो आगे जा. चल. Now, ए बंद सोलर सेंसर है. सोलर सेंसर चलो. में कैल्सी लगे बैठे अभी next part of basics, that is subsidiary book. Subsidiary book part 1 skip करो, part 2 पे जाओ. Part 2 subsidiary book part 2 you have purchase book, sales book and returns book. याद है format? What is the format of subsidiary books? Drop first, single side. Subsidiary book में क्या क्या होता था? It is purchase book, सर एक पेज में आ जाएगा ना हाँ, sales book, purchase return book, sales return book. याद आया कुछ? क्या लिख रहा है? तो name of the and इधर name of the सर नेम ऑर्डर आने को चालू customer नहीं लिखना है पूरा. फॉर्मेट में तो 15 मिनट जाएगा. Name of the supplier. इतना बात नहीं करोगे तो और जल्दी हो जाएगा. Name of the customer. LF because it's a journal. यहाँ क्या आता है? Inward invoice number. याद है? Outward invoice number. Then what? Debit note number and credit note number. Is this clear?
अभी बताओ मुझे, what are subsidiary books? Are these third or fourth books of accounts? No. How many books of accounts do we have? Just two. Journal and ledger. दो ही books of account होता है, journal and ledger. बराबर है? सुना? Only journal and ledger. So ये क्या है? What the hell is subsidiary book? Subsidiary book is nothing but subdivision of journal. Subsidiary books are nothing but subdivision of journal. Journal का ही टुकड़ा कर दिया है, that is what is subsidiary books. Is this clear? The subdivision of journal. Why do we divide the journal into various parts? Better efficiency. Better efficiency. Okay, एक एक बंदे को particular type of book दे दिया, तो बराबर से maintain होएगा, बराबर है? So as and when the size of the business increases, you divide your single journal into various parts. Those parts are called as subsidiary books. And which type of transaction you record in which book? In purchase book, credit purchase of goods. Sales book, credit sale of goods. Purchase return, goods returned by us. Sales return, goods returned by customer. Cash book, क्या record होता है? Cash transactions of big value. Petty cash book, small value cash transactions. बराबर है? There is one more. कौन सा है? Journal proper. Which one is that? Journal proper. What do we record in journal proper? All the Remaining. All the remaining transactions that cannot be put under any other subsidiary book. अच्छा, what do you mean by inward invoice and outward invoice? Bill, okay, proof of buying the goods on credit basis. That's called inward invoice. Inward invoice is goods खरीदने का bill का proof, बराबर है? Goods लाने का proof, inward invoice. Outward invoice बेचने का proof, बराबर है? By selling the goods you send the bill, so that is outward invoice. उसका नंबर आता है. What is debit note? Purchase return. Whenever we return the goods, we will attach a debit note, and return will get a credit note. And when somebody else returns, we send a credit note, and we will get a debit note. याद आया? And inward invoice का एक और नाम है. Invoice का दूसरा नाम क्या है? Memo, credit memo. क्या बोलते हैं उसको? Credit memo. Okay. What is cash memo? कैश परचेज है, कैश सेल. अभी 11th का रूल थोड़ा अलग है. 11th स्टैंडर्ड में परचेज सेल कैसे भी हुआ हो, रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट. बट सीए एग्जाम में याद रखना, ये प्रैक्टिकल है कि अगर खरीदा क्रेडिट पे है तो रिटर्न क्रेडिट पे, लेकिन अगर कैश में खरीदा है तो रिटर्न्स आर आल्सो इन कैश. समझा क्या बोला? क्रेडिट पे बेचा तो रिटर्न्स आर ऑन क्रेडिट, माल आएगा हम पैसा नहीं देंगे. बट कैश में बेचा है तो रिटर्न्स आर आल्सो इन कैश. दैट गोज विदाउट सेइंग. सीए एग्जाम में याद रखना, परचेज सेल अगर क्रेडिट पे है तो ही रिटर्न्स क्रेडिट पे होगा. परचेज सेल अगर कैश में है तो रिटर्न्स भी कैश में होगा. ये सीए के लिए है. 11th में हमेशा रिटर्न्स आर अज्यूम्ड टू बी ऑन क्रेडिट. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ दिस प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट. सप्लाइड गुड्स टू ए एज पर देयर ऑर्डर. व्हिच बुक? क्या लिखना है यहाँ पे? सिर्फ नाम लिखना है. ए एंड कंपनी. कितना है? 2000. बराबर है. बॉट गुड्स फ्रॉम आर एंड कंपनी लेस 10% टीडी. विच बुक? परचेज बुक. ओनली द नेम, नो अकाउंट, नथिंग. आर एंड कंपनी. विल यू सब्ट्रैक्ट टीडी? यस. ये क्रेडिट पर होते हैं तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट टीडी. 1080. Bombay Furniture Works supplied furniture as per their order. Which book? Purchase book, right? Why journal proper? Asset है. इसमें notes नहीं, सीधा journal proper. क्या? Sorry, what? Yeah, everyone have to make journal proper. सबको journal proper बनाना है. Yeah.
कुछ नहीं दिया है तो मेक अ जर्नल प्रॉपर। एंट्री क्या होगा? फर्नीचर टू बॉम्बे फर्नीचर वर्क्स, बराबर है? फर्नीचर टू बॉम्बे फर्नीचर वर्क्स, दैट इज 5,000. This is being furniture purchase. शॉर्ट में लिख दो, एक ही सब में दे रहा हूँ, Sorry, Anna. एक ही सब। Please, sir. नाउ लिखो, इतना लोग एब्सेंट है क्या सीन? हाँ? इसका तो पासिस था ना? Sir, તમે સવારના પનોતી લગાડી કે मिला ही नहीं। તમે સવારે જ પનોતી लेकिन ये लोग क्यों नहीं आया? वो तो गया अभी पासिस का, थक गया इसलिए नहीं आया। क्या रिकॉर्डिंग ही बंद कर दे। चलो सर 21 का नंबर चेंज करना पड़ेगा, अपडेट रॉन्ग है। इसका 21 है, 14 12 है, 12। 8 के बाद डेट इज 12। सोल्ड गुड्स टू बी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, विच बुक? सेल्स बुक बी एंड कंपनी, 12 तारीख कर देना उसको, 650 रुपीज मिला। Bought goods from Y and Company 1500 less 20% TD. Which book? Purchase book 1500 less 20% TD. I think this is 1200. Is that correct? સર થોડું ધીરે પ્લીઝ. Then send a debit note to Y and Company for damaged goods. Send a debit note मतलब shut up. Send a debit note is purchase returns. So Y and Company, will you subtract any TD? No, because gross वगैरह कुछ दिया नहीं है. Send a credit note to A and Company. Which book? Sales returns book. Is that correct? ग्रॉस मतलब TD सब्ट्रैक्ट होगा, नेट मतलब नहीं होगा। कुछ नहीं दिया तो भी नहीं होगा। रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम Z मतलब परचेज बुक Z एंड कंपनी, Z एंड कंपनी, दिस इज 2400, बराबर है। सेंड अ क्रेडिट मेमो, व्हाट इज अ क्रेडिट मेमो? इनवॉइस, right? Send a credit memo is credit sales. C and company, value is 1600. This is happening on 25th. Made cash sales. Which book you write cash sales in? No, cash book. So cash sales on which date it is? 26th. Will be recorded in cash book. Okay, that will go in note. What about cash purchases? That will also go in which book? Cash book. Supplied goods to M&M company, which book? सर हमने जीपी में कराई नहीं वो उधर में नोट में, करवाता है, नोट इधर में। नोट में, सीए में नोट में है। नेक्स्ट वन, खाली जर्नल प्रॉपर का जर्नल प्रॉपर में वो सप्लाइड गुड्स टू M&M कंपनी, विच बुक? सप्लाई किया तो हमने सेल्स किया है, सेल्स बुक। बॉट गुड्स फ्रॉम M&M कंपनी, विच बुक? Purchase. M&M कंपनी, परचेज बुक 800. इज दैट क्लियर? मिला? M&M कंपनी सेंड अ क्रेडिट नोट, M&M कंपनी ने क्रेडिट नोट भेजा तो हमने क्या भेजा? विच बुक? परचेज रिटर्न्स बुक, बराबर है। M&M कंपनी परचेज रिटर्न्स बुक 50 रुपीस, इज दैट करेक्ट? एंड सेंड अ क्रेडिट नोट टू M&M कंपनी, हो क्रेडिट नोट टू M&S नहीं है, M&M कंपनी, वैल्यू इज 75, बराबर है। इज दिस क्लियर? Got it all of you?
जहाँ वो 4 लोग उधर गया ना टूर्नामेंट के लिए। चलो नाउ टोटल्स कर लो, कितना आ रहा है? दिस इज व्हाट 5400 5400। सर 5480 है सर ओके दिस वन This was 4950. Sir 4950. ओके लास्ट में टोटल्स कर देना है। अब सीए एग्जाम में कैसा होता है, ये आपका 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, इसमें चारों बुक पूछते थे नॉर्मली, 11 में चारों बुक्स पूछते हैं आपको सब में। सीए एग्जाम में मैंने बताया इसका मैक्सिमम वेटेज ये चैप्टर का 4 से 5 मार्क, तो आपको एक ही बुक पूछा जाएगा कोई, या तो परचेज बुक, या तो सेल्स बुक, या तो परचेज रिटर्न, या तो और उसके साथ लेजर पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? लेजर। तो याद है हम लोग लेजर बनाते थे, लेजर में कैसे पोस्टिंग करते थे कि आप लोग वापस लिखते थे पार्टी का, जैसे परचेज अकाउंट टू RYX नहीं, क्या लिखते थे? सन्ड्री एज पर परचेज बुक। सेल्स में क्या लिखते थे? बाय सन्ड्री। परचेज रिटर्न में बाय सन्ड्री, सेल्स रिटर्न में टू सन्ड्री। ओके, so we'll do that now. Look at question number 2. सर 2 मिनट सर 2 मिनट Question 2. इसमें नहीं, next sir. सर डेबिट नोट नंबर यूजुअली वो एज अ साइड ऑफ प्रूफ होता है ना कि पहले कुछ वापस भेजे या फिर ये भेजा। ये लोग ना खाली परचेज बुक ही करते हैं। हाँ। नेक्स्ट वाले में पढ़ो क्या पूछा है बेटा, खाली परचेज बुक पूछा है एंड पोस्टेड इनटू लेजर मिला, तो एक फुल पेज का परचेज बुक बनाओ, फुल पेज और दूसरे साइड लेजर बनेंगे। दूसरे साइड पे लेजर 5 अकाउंट बनेंगे, 5 सर नाना के मोटा सर एक पेज पे 5 फीट हो जाएगा, नाना हाँ इधर हो जाएगा, उधर लेजर बना। एक पेज पे 5 पहले एक पेज पे परचेज बुक बनाओ, बाद में लेजर बताता। अभी फिलहाल परचेज बुक फुल पेज का बना। जनरल प्रॉफिट तो छोटा रहेगा, आधे पेज का हो जाएगा। और लेजर लेजर अलग 5 अकाउंट एक पेज। ये हो गया सबका? ये सर जेपी नहीं बनाया था सर, जेपी बनाना है। हाँ जेपी छोटा ही है, आधे पेज का ही है। सर परचेज बुक नीचे आ गई जैसे जेबी। हाँ आ जाए, परचेज बुक के नीचे 4 लाइन में जेपी आए, 4-5 फुल पेज परचेज बुक ऑलमोस्ट 3/4 जितना है। बड़ा ही सिंपल है, खाली आपको कैलकुलेट और लिखना है उधर डिटेल पर। क्वेश्चन 2 सर 5 अकाउंट बनाएंगे। 5 अकाउंट रुको मैं बताता हूँ बाद में। पहले खाली अभी परचेज बुक बनाओ और जेपी बना लो छोटा सा, 1/4 से थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट पेज पे बना लो। देखो परचेज बुक बनाया, पढ़ो। नहीं रुको सर। देखो बोलो 11 लोग एब्सेंट है, कौन कौन है नाम? न्यू भेजा नहीं। एक मिनट एक एक करके बोलो। साहिल, फिर मोक्ष, नीव, प्रथम का एनुअल फंक्शन, प्रथम शौर्य मेहता, शौर्य का टूर्नामेंट है। हाँ एक मिनट, जैनिक,
जैनिक गधेड़ा वीरती कनाडी पागल जैनिक शाह है ना हाँ वीरती कनाडी और अरब तो अरब चाहिए क्या हाँ सर पता पूरा है हो गया बाकी आपका और पूरा वो बैंजो बजाना ढोल बजाना पूरा को राइड ढोल बजाना और वंश टक्कर नहीं पागल है वो वंश गया है उसका नेटवर्क सब मैंने मैसेज तो किया वो था मेरा टिकट बुक कर देगा वंश ठक्कर और एक मिनट साहिल मोक्ष प्रथम चौर्य जैनिक अरहम गणी पूरव वंश वीरती नीव एक और है। पार्श्व है ना? दोनों भी है पार्श्व मेहता ये अरे मधु मेहता फीस टीपी एक और ही ढूंढो ना कौन है मोक्ष हो गया एक बोल दो अभी फटाफट राजू भाई ढूंढो ब्रेक में ये सुदर्शन है एक जन और है अरे अटेंडेंस ले ले सब चलो क्वेश्चन 2 देखो अभी सब लोग ध्यान से रीड हाँ मैं absent हूँ। परचेज फ्रॉम अभी इधर ध्यान दो परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस ये सीए का सब है मॉड्यूल का आईसीआई का रिस्पेक्ट और ये आ चुका है क्वाइट प्लीज सर वापस नहीं आएगा देखो अभी ध्यान से परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 dozens Rexon हवाई चप्पल at 120 per dozen and 200 dozen bulky leather चप्पल at 300 per dozen. Trade discount 10% freight charged 150. So how to present it? ध्यान से देखना. April 4/4/17 इधर लिखने का अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली डिटेल लिखने का रेक्सॉन्स हवाई चप्पल ओके रेक्सॉन्स हवाई चप्पल these are 100 dozen at 120 per dozen which is I think 12,000 मिला यस पूरा डिटेल यस बल्कि लेदर चप्पल इधर एक ही बुक है ना तो सब डिटेल दिखाने का अच्छे से सजा दजा के बल्कि हवाई चप्पल इज 1 डिटेल्स ना मार्क्स है yes 200 into 300 which is I think 60,000 is that right total is 72,000 less DD 10% which is 7200 so you arrive at I think 64,800 final amount in the outer column 64,800 Separate JP फ्रेट पेड है कि फ्रेट चार्ज है चार्ज है फ्रेट चार्ज का मतलब होता है फ्रेट पेबल फ्रेट पेड होता है ना तो फ्रेट टू कैश दिस इज फ्रेट चार्ज मतलब फ्रेट देना बाकी है तो फ्रेट पेबल का एंट्री क्या होता है फ्रेट पेबल का फ्रेट टू आउटस्टैंडिंग बट मैंने एक चीज बताई थी अगर एक ही जन को देना बाकी है तो आप पार्टी का नाम लिख सकते हो तो फ्रेट टू अजय फ्रेट टू अजय तो फ्रेट की एंट्री होगी फ्रेट टू अजय डेट विल बी 4th फ्रेट टू अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 150 this is freight payable charge is payable okay freight paid is paid charge means payable देना बाकी है और द फर्स्ट वन सिमिलरली अगर फर्स्ट वाला आ गया तो सेकंड थर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेम ही है करते जाओ अप्रैल 15 परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली तो क्या लिखने का 15 अप्रैल 17 बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली
बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, क्या है इसमें? देयर आर मैक्स शूज, मैक्स शूज। સર આટલું કરશો તો પછી અડધું પેજ તો અમે જોયું. हाँ पूरा ही पेज जाएगा। 50 તમે to જર્નલ પ્રોપર 400, सॉरी જર્નલ પ્રોપર પણ ઈ જ પેજ કરવાનું. हाँ हो जाएगा। स्पोर्ट शूज है, उसके बाद स्पोर्ट शूज, तीन ही ट्रांजैक्शन। स्पोर्ट शूज है 100 into 140, दिस इज आई थिंक 14,000, टोटल इज व्हाट 34,000 less TD 10%, which is 3,400, so 30,600, is that right? मिला? 30,600 आया, देख लो, चेक आया क्या? Yes. 30,600 मिला क्या? Yes. चेक चेक चेक। नेक्स्ट, इसमें भी फ्रेट चार्ज है। व्हाट इज फ्रेट चार्ज? पेएबल। तो फ्रेट टू क्या आएगा? बालाजी एंटरप्राइजेस दिल्ली, विच इज 200। फ्रेट टू बालाजी, ये फ्रेट देना बाकी है। तीसरा वाला है फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, दिख रहा है? 28 अप्रैल 17, तृप्ति इंडस्ट्रीज है, कुछ नहीं है, छापने का मार्क्स है, वही जो दिया है वो छापना है आपको। नाम लिखो और डिटेल्स भरो। दिस इज लेदर शूज, लेदर शूज कितना है? 40 पेयर एट 400 पर पेयर, 40 to 400 is I think 16,000, right? And Rosie हवाई चप्पल, Rosie हवाई चप्पल, this is what I think 100 dozen at 180 per dozen, so 18,000. The total value is I think 34,000 less TD 10%, which is 3,400, so 30,600. What about freight? Again charged, so entry क्या बनेगा? Freight to तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, the value is I think 100. Is this clear? You got it? Hello, hello, hello. समझा? No. Understood? That's it. इसका 5 मार्क ऐसा नहीं है, इसके बाद लेजर। अभी लेजर बोला है, ये कर लो पहले। अभी पोस्ट पेमेंट टू लेजर बोला है, तो कौन सा अकाउंट बनाना है आपको? पोस्ट पेमेंट टू लेजर बोलते हैं। You have to make purchase account, number 1 purchase account, then Ajay, Balaji, Tripti and Freight, 5 accounts. Okay? Necessary मतलब सारे बने, परचेज, अजय, बालाजी, तृप्ति एंड Freight। एक पेज पे, सॉरी एक पेज पे हो जाएगा। सर 1,20,25 आएगा ना? टोटल कर लो। 1,26, 1,26। तो कैलसी क्यों नहीं निकलता है? बट यार सच में भूल मैं उसका डिसरिस्पेक्ट चलो गाइस, बद्दा अकाउंट बनाए तो परचेज अकाउंट नहीं बनेगा। परचेज अजय, आप परचेज के बद्दा अकाउंट बनाओ। બધા તો અકાઉન્ટ બનાવીએ છે। અજય બદ્દા બનાવે તો પરચેજ મેન તો પરચેજ છે, સન્ડ્રી સન્ડ્રી લખવાનું। ટોટલ 1,26,000। एक ही पेज पे आई थिंक फिट हो जाए, एक ही पेज पे हो जाएगा 5 अकाउंट्स। अरे बोल 1 page you can fit 5 accounts. Purchase Ajay
बालाजी, तृप्ति एंड फ्रेट। एक एक लाइन का पोस्टिंग आएगा, खाली समझने के लिए कि पोस्टिंग कैसे होता है। यस सर। ये सब आपने किया है, रिपीट है सर। Read it in 11th standard। एक पेज पे 5 अकाउंट बना लो। सर पजामा संडे ना ना ना, खाली परचेज अकाउंट में सन्ड्रीज आता है, इंडिविजुअल में तो नॉर्मल पोस्टिंग होती है। देखो ये चारों अकाउंट में नॉर्मल पोस्टिंग है, इसमें खाली सन्ड्री लिखना है। कैसे लिखना है? परचेज में विल यू राइट बाय बालाजी, बाय अजय, बाय तृप्ति? नो, व्हाट विल यू राइट? सॉरी, परचेज में टू बालाजी, टू अजय, टू तृप्ति, क्या लिखने का? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितना? 1,26,000। which date? Last day. And the sum, इसका part is over by balance sheet। Okay, will become to balance sheet। एक एक लाइन का ये, खाली फ्रेट में 3 आएंगे। परचेज में 2 सन्ड्री आएगा, सेल्स में क्या आएगा? बाय सन्ड्री। सेल्स में तो बाय पार्टी आता है ना, बाय पार्टी के जगह बाय सन्ड्री। Why are we writing through sundry again? Why are we not writing party's name? क्या? हाँ, ऑलरेडी रिपीटेशन हो जाएगा, लिखा ही है बुक में। आपको डिटेल्स चाहिए तो बुक में से दिख जाएगा। इज इट क्लियर? तो वापस वही नाम लिखने की जरूरत नहीं। अजय एंटरप्राइजेस में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। इसमें तो इंडिविजुअल पोस्टिंग ही होगा। बाय परचेज कितना है? 64,800 और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस शीट 64,800। ये डेट होगा आपका 4th और ये होगा 30th। अब ब्रॉड डाउन वो लिख दो, चलेगा। नहीं लिखा तो भी चलेगा, ब्रॉड कैरी डाउन लिखा तो इनफ है। सेम पोस्टिंग इन बालाजी। बालाजी में भी क्या लिखेंगे? बाय परचेज 30,600 on 15th of April and to balance CD। Is this clear? Sir, Ajay Enterprises का buy freight का नाम। हाँ, buy freight। Oh sorry, shit. Yeah. Buy freight भी है। Buy freight। Freight तो अजय भी है। 64,950 हो गया। इसमें भी आएगा buy freight 200 30,800 freight भी है। और इसमें भी आएगा बाय परचेज, दैट इज 30,600 एंड बाय फ्रेट। फ्रेट तो पार्टी है ना, पेबल। फ्रेट कितना है इसका? 1 तीनों में आएगा बाय परचेज और बाय फ्रेट एंड टू बैलेंस 30,700। Okay, it's 28th. This is 30th. सर
हम लोग बैलेंस सीडी का लिखते हैं, बैलेंस सीएफ का लिखते हैं। एक ही सीडी सीएफ एक ही कैरिड डाउन इज कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन इज ब्रॉट फॉरवर्ड। सीडी लिखो या सीएफ लिखो, बीडी लिखो या BD। एक ही सीडी सीएफ बीडी बीएफ इज वन एंड द सेम। यस काव्य। नाउ फ्रेट में क्या आएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंट्री सबका। बाय फ्रेट है ना, तो फ्रेट में आएगा टू अजय एंटरप्राइज दिल्ली 150 टू बालाजी एंटरप्राइज बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली that is 200 and to Tripti Enterprises Industries Bahadurgarh. This will be 150. 100. Get the balance. है सिंपल है, खाली सिली मिस्टेक से केयरफुल रहना है। समझा कैसे करना है? परचेज में टू सन्ड्री, पार्टी में तो नॉर्मल है बाय परचेज बाय फ्रेट, बाय परचेज बाय फ्रेट, बाय परचेज, और फ्रेट में टू पार्टी और बाय बैलेंस। मिला? इज दिस क्लियर? समझ आया पोस्टिंग पार्ट? हेलो हेलो हेलो। खाली परचेज का ख्याल रखना, इसमें सन्ड्री लिखना है, बाकी किसी में सन्ड्री वन्ड्री लिखना। नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद से ट्राई करो। उसमें आपको सेल्स बुक बनाना है और उसका अकाउंट बनाना है। ओके, 4th और 5th करो, 4th और 5th। कपॉन 4th करो, 5th करो फटाफट। सेल्स, पहले तो सेल्स बुक बनाओ, फिर उसके लेजर पूछे हैं, तो लेजर में कौन से बनाने हैं? सेल्स और 3 पार्टी आई थिंक, अजंता इलेक्ट्रिकल दिल्ली, अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा एंड हरियाणा ट्रेडर्स। मिला? इसमें फ्रेट नहीं आए थे, देयर इज नो फ्रेट, नो फ्रेट। सो ओनली सेल्स बुक, जस्ट लाइक दिस यू विल मेक सेल्स बुक विद डिटेल्स, 1 पेज फुल फॉर सेल्स बुक एंड 1 पेज पे 4 अकाउंट। समझा कौन सा? हाँ, जर्नल प्रॉपर इसमें नहीं होगा क्योंकि नो फ्रेट, जर्नल प्रॉपर नहीं है। समझा? ओनली सेल्स बुक एंड 4 अकाउंट, 3 पार्टी का अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सन्ड्री किस में लिखोगे? सेल्स। पार्टी में सन्ड्री लिखना है कि नहीं? पार्टी में 2 सेल्स, 2 सेल्स, 2 सेल्स। करो ध्यान। 4 और 5 दोनों करो फटाफट। ये जिन्हें परसों छुट्टी है सभी को, हमारे कॉलेज को नहीं छुट्टी है, गवर्नमेंट नहीं, सब कॉलेज को छुट्टी ना चाहिए। कल परसों इलेक्शन ड्यूटी है तो दूसरे कॉलेज को पता नहीं उसको। कई शादी क्या देखा जब जयंत के साथ तो सब वैसे मतलब वो इसके साथ है ना, वंश के साथ में, वंश के सामने ना वो एक आता है सीए करने, एनएम
लेकर टू साइड भी फर्स्ट सेकंड एंट्री सेम है तो क्लब कर सकते हैं। ओके भाई एक गली में और एक प्लाजा है, ये अलग है। एक प्लाजा है और एक गली है। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब वो मेरा आज भी पर मैंने बोला कि अगर सी में लेक्चर तो फिर करना
अरे भाई चलिए तो अरे शक्ल ले दे बोलो सब पता है बोलो बाहर बैठे सब मैसेज कर तुम मैसेज देखना है यू मैसेजेस टू आवर पप्पा बात है आवर दिया तो उसके जवाब सिर्फ जवाब में से अरे पाछू बोल ले टोटल क्या है मैं मोटू नहीं बोल हो गया अरे सर एक संख्या बता दो क्या हो गया क्वेश्चन बोलते हैं डिटेल दिखा क्या करता है ओवन्स टैबलेट्स ओवन्स टैबलेट्स जूसर्स देन अमाउंट हो गया पूरा टैबलेट्स है सर फर्स्ट को अमाउंट सॉल्व करवाने में पर एक 25 ना लागे यार अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा अजंता इलेक्ट्रिकल टेक्निक वाला के पटेल ग्रे कलर बनता है हो गया अकाउंट बनाया अकाउंट में भी एग्जाम कर ये इसमें से आता है पोस्ट द फॉलोइंग एडिटर हाउ टू किसी को भी नहीं मिला पास सबको गया बीबीआई वालों को मिला है गरीब लोग लाइन में रुकने के लिए आइटम में ओवन में 5 मिनट में तरफ को नहीं 5 मिनट में फिर निकलेगा आई मिटिवाई जी वो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था लास्ट टाइम शो के वक्त स्टैम्पेड हुआ था वो शो कैंसिल कर दिया है ऐसा कुछ हो गया हाँ स्टैम्पेड हो गया तो थोड़ी करेगा फिर आगे फिर अभी पास देगा कि नहीं देगा इलेक्शन के बारे में पता चले इलेक्शन के 2 दिन काली छुट्टी है इवेंट कब है 21st 20 कौन तुम कितना घंटा रुकी स्वरा नहीं गई पूरे कितना कलाक रुकी 3 आवर्स सर पूरी 15 मिनट 3 कलाक ऊपर हाफ पर मेट्रो मध्ये कॅरेज स्टोरी आहे विषय देवाला के 5 15 लोकांनी लाया करो करो फटाफट ये नेक्स्ट ये आवाज नहीं है ये चले हाफ टिकट अरे 6 लेजरी वाले आज तो बहुत कम रेट नहीं मैं उधर था नहीं अपने बॉल के बहुत ही उधर ही थे 85 के उधर
अरे चंदा पास के मैडम गाड़ी किसको के लिए चलो बगत जेवण लोग देख रहे हैं अरे सुन हाँ पूछ के उससे क्या लोग एक बार चालू दे मेरे पापा के सर से उसका क्या उसका भी मेरा बाबू इसको भी बोलेगा हो गया? अभी एक सम नंबर फोर्थ सम इतना टाइम नहीं लगेगा भैया सीएस सर फोन तो देगी फोर्थ थोड़ी करी फोन तो कही फोर्थ करो ना थर्ड सम फोर्थ और फिफ्थ अभी तुम लोग ने किया थर्ड सम ले क्या बनाना है देखो थर्ड सम अगेन देयर इज ओनली परचेज बुक थर्ड सम सर हम अकाउंट नहीं बना अरे सर बहुत जर्नल जर्नल प्रॉपर एंड परचेज बुक अकाउंट मत है अच्छा अकाउंट नो अकाउंट तो ले सर नो ले देखो सर वेला तो मजा लो जुनू बाकी फटाफट टाइम पास नहीं हो तो बातों कर चलो कम ऑन क्विक चलो गाइस फटाफट अभी फर्स्ट ये है ना सेम क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ चुका है सेम ये भी आईसीआई मॉड्यूल सम है देखो रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी इज गिवन टू यू देखो इधर लोचा होता है ग्रॉस वर्ड देख के ओके ग्रॉस ग्रॉस इज नॉट दैट ग्रॉस दिस इज डिफरेंट ग्रॉस दिस इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रॉस you know gross one dozen has how many units 12 and one gross 25 बस 1 2 3 4 one see one dozen is 12 units one gross ये जल्दी ध्यान दो इधर one dozen is 12 units and one gross is 12 dozens okay 144 units is it clear one dozen is 12 units one gross is 144 12 dozens okay 12 dozens that is 144 units remember that इसको ग्रोस बोलते हैं ग्रोस ग्रॉस नहीं बोलते हैं ग्रोस बोलते हैं ग्रोस ओके नॉट योर ग्रोस वाला ग्रोस दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रोस ओके बताता हूँ चलो फर्स्ट वन परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 gross pencils at 100 per gross and 1 gross register at 240 per dozen less 3D so date is 1st Feb 16 shut up Aryan chup Brown and company focus Brown and company कितना it is
5 gross pencils. So pencils 5 gross at 100 per gross. So I think that is 500 Bila. And registers are 1 gross at 240 per dozen. So I think it is 12 into 240. 288. Did you understand? पहले वाले में प्राइस पर ग्रॉस था, दूसरे वाले में प्राइस पर डजन था. तो एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं? 12. तो 240 into 12, that is 2880. So total value is 3380 and then less TD 10% है ना? 338 you subtract, so 4 2. समझा कैलकुलेशन? Yes, yes. Both of you will be out of the class. Last one. Last. For this year. CA करना है तो. ठीक है? Now 3042 कैसा आया? पहले वाले में प्राइस पर ग्रॉस था, दूसरे वाले में प्राइस पर डजन था, यूनिट नहीं था. पर यूनिट होता तो 144 से मल्टीप्लाई हो जाता, पर डजन था. ये समझ आया? पहला वाला. दूसरा, परचेज फॉर कैश स्टेशनरी फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट 10 gross exercise book at 300 per dozen. Which book? Cash book. So note में जाएगा. This is 2nd Feb. ये क्या है? Purchase of stationery for cash, which will be going in cash book. Purchase of stationery for cash, that will be going in cash book. Is this clear? Then computer for office use from Messrs Office Goods Company on credit. Where do you put computer purchased on credit? Why? Asset. So computer to Messrs Office Goods. This is 30,000, I think. Yes. Please check. Computer purchased on credit 30,000. Did you get it? Yes. Then purchase on credit from the paper company. वापस you're buying on credit. Pay from paper company. The paper company. What have you purchased? Check. 5 reams of white paper. Reams means those big rolls. Have you seen those in trucks and all the load? So reams बोलते हैं. So 5 reams of white paper at 100 per ream. So this is white paper. White paper 5 into 100. That makes it 500 and 100 reams of ruled paper. Ruled paper is your foolscap जैसा paper. 10 reams at 150 per ream, that makes it 1500. So total value is 2000 less TD 10%. So 200. So net amount is 1800. Understood? And purchase 1 dozen gel pens at 15 each from Verma Brothers on credit. So this will also go in what? Purchase book, Verma Brothers. What have you bought? Gel pens. Gel pens कितना है? 1 dozen at 15 per pen. 15 each. So 15 into 12. 180. इस पे कोई TD नहीं है. तो final total is 582. Correct? 502. कैल्सी बेटा, कैल्सी आपके पास थी. हाँ? बराबर है? 5022. 5020. दोनों कैल्सी लेके क्या कर रहे हैं? शोभा के लिए रखा हूँ. बार-बार हाथ लग रहा था. 5022 मिला. तुम लोग है ना थोड़ा बड़ा हो जाओ. चलो बाद में इधर देखो. Come on.
Nila 5022. Clear with the question? Asset था तो JP, cash है तो cash book, note, बाकी इधर purchase book. Gross का मतलब समझा? Gross means how many? बोलो. 12 dozens. Is it clear? Next one. Some number सर 7. What? टाइम पास है इसमें लेजर पूछा है? नहीं, इसमें लेजर नहीं. Sum number 7. 7 sum देखो. From the following make what? Purchase returns book. कौन सा बुक पूछा है? बनाओ. एक पेज का purchase returns book बनाओ. सर एक मिनट ये तो हो गया ना? हाँ वो ये हो गया ना? ये रख रहे हैं. नोट बाकी है अरे यार Guys. सर सेल्स बुक फुल पेज ना परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक बनाना है. आप पेज में हो जाए. परचेज रिटर्न बुक. सेकंड एंट्री नहीं आती हाँ, सेकंड एंट्री सेकंड और फोर्थ दोनों नहीं. देखो पहले ड्रॉ कर लो. जेपी का है तो बनाओ. परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड. अगला क्वेश्चन सेवेंथ चलो गाइस. सेवेंथ ओके. सम नंबर 7. और प्राइस मनी बाकी प्राइस यस तुम्हारा भी बाकी है. तुम्हारा स्कोर फुल मार्क्स. कच्ची का पेपर दे दो. सर पासिंग कितना था हाउ से प्राइस. I'm discussing. 7th sum देखो 4th of January please focus. 4th of January return to Goyal Mills Surat 5 polyester sarees at 1000 rupees. Which book? Purchase return book. Hello. 4th of January 2020. This is Goyal Mills. नीला क्या रिटर्न किया? पॉलिएस्टर साड़ीज. कितना है? 5 at the rate of 1000 which is 5000. Note TD debit note number 101. नीला this is also module sum. Okay, आएगा तो 5 मार्क के लिए. फोकस 4 या 5. Then 9/1/2020 पढ़ो क्या दिया है. Read. कैश रिटर्न. Girk Mills Kota accept your return of goods which are purchased for cash from us. 5 Kota sarees of 400 rupees. Which book? Why? Cash purchase. Cash purchase है तो returns भी are on cash. Credit purchase है तो returns are on credit. For your CA exams, remember.
So which book it will go in? Cash book. So note में जाएगा on 9th of Jan. Goods returned for cash. Goods returned for cash will go in cash book. इसका journal entry क्या बनेगा? Cash में purchase return हुआ है. Cash to purchase return. Cash to purchase return. That will go in cash book. Then 16th of Jan, return to Mittal Mills, Bangalore, file sales price 22, 29. This is journal. नहीं. 16th Jan. This is purchase returns. 16th Jan वाला is purchase returns. ये क्या आएगा? Mittal Mills, Bangalore. मिला? Then इतना है silk sarees. There are 5 silk sarees at 2600. 2 5s are 10. 13,000 आ रहा है. Debit note number 102. आपने ध्यान दिया होगा ना? तो जो क्रेडिट वाले रिटर्न है ना उसपे भी डेबिट नोट है. डेबिट नोट तभी दिया जाता है जब आप क्रेडिट में रिटर्न करते हो, क्योंकि पार्टी को डेबिट किया उतना पैसा हम कम देंगे, समझा? अगर आप कैश में रिटर्न कर रहे हो तो डेबिट नोट बनने वाला नहीं है, पैसे आ गए. नो डेबिट नोट फॉर दैट. दैट्स अनदर हिंट. इज दिस क्लियर? They are returning on credit only, then you will have debit note number. What about the last one? One computer being defective. JP. Why JP? Asset. So JP छोटू सा बना लो एक लाइन का. क्या होगा एंट्री? B and go to B and company to computer लिखोगे, computer return account. computer. Asset है तो no multiple account. Is this clear? Asset है तो उसमें कुछ multiple account नहीं. They had asked you only purchase book, no ledger. What if they would have asked you अच्छा इसका टोटल कर लो कितना? 18,000. What if they would have asked you ledger of purchase return? क्या लिखते उसमें? Buy sundries as per purchase return book. कितना? And what about cash वाला return? उसका एंट्री क्या है? कैश टू परचेज रिटर्न. तो परचेज रिटर्न में बाय कैश, परचेज रिटर्न में आता बाय कैश. वो बाय कैश आता 9 तारीख को और ये बाय सन्ड्रीज आता 31st को. इज दिस क्लियर? नॉर्मली नहीं रहता है. So the first time you are getting cash returns. Understood? Yes. So buy cash on 9th and buy sundries on 31st and then balance. Clear with this? What if there are no cash returns, only sundries? So try question 6. Question 6 में लेजर पूछा है, जर्नल दिया है आपको लेजर बनाना है. Just make return outward account quick. बाकी return outward राजेंद्र and modern 3 बने. Return outward राजेंद्र and modern 3 accounts quick. Ledger. Last sum for the day. 3 लेजर पूछा है. रिटर्न आउटवर्ड राजेंद्र एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक. ત્રણે જ account Sir, Yeah. Huh? ત્રણે જ account. 3 accounts. Purchase return Rajendra and modern electric. 3 accounts quickly make. 3 ledger accounts एक साइड पे आ जाएगा. 3 सुप्रिंटेंडेंट नेक्स्ट में है नाना पासवर्ड वही है. सर परचेज राजेंद्र किधर है? अरे 20th November 2020 ये रहा है. अच्छा वो और Come on.
करो चलो ध्यान से यस Sir, amount what did you get? हाँ Amount what did you get? 180 dash to purchase, what did you purchase? So buy 2 weeks is amount of buy. Return outward is purchase return account. You have to make purchase returns and couple of creditors. Last 3 ledgers ही. आज का होमवर्क है वो देखा आपने जर्नल लेजर का सम्स देखा जर्नल लेजर का सम्स देखा ट्रू ऑफ फॉल्स देखा छोड़ना मत हाँ सीए कर रहे हो 12 जैसा नहीं है 11 12 इधर है सीए इधर है इतना गैप है ये 11 12 है ये सीए है जमीन आसमान का फर्क है ये लेवल से पढ़ाई करोगे तो हो गया नहीं होने वाला है आगे सुन रहे हो रेगुलरली करते रहना एंड मिनट इतना बर्डन लगेगा ना काम होने वाला नहीं है फिर अभी ये वीक यू हैव टू डू विच बुक सब्सिडरी बुक आई विल शेयरिंग सब्सिडरी बुक का पीडीएफ गो थ्रू ऑल द सम्स एंड ट्रू और फॉल्स एक भी छोड़ना मत बना लिया अकाउंट क्या लिखोगे परचेज रिटर्न में क्या आएगा बाय सन्ट्रीज कितना 280 व्हाट अबाउट राजेंद्र क्या लिखोगे उसमें टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 180 मॉडर्न में टू परचेज रिटर्न 100 वो दोनों में डेट वाइज और टोटल आएगा लास्ट डेट ओके ये भी मॉड्यूल समझा दिस कैन कम फॉर 5 मंथ्स आज मॉड्यूल भेज रहा हूँ